निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। तो अभी तक हम अरुण गारू आप पहले का वो वीडियो जो लास्ट क्लास का वीडियो आप देख चुके हैं ना? हाँ, या देखा है। कौशल जी? हाँ जी देख लिया मैंने। अच्छा ठीक है। तो इससे पहले के क्लास में हम आद गुणः ये सूत्र के 2 उदाहरण तक हम देखे हैं। ये आद गुणः क्या होता है? गुण संधि विधायक सूत्र होता है। आद गुण सूत्र which is used to do गुण संधि। आत गुणः, there are 2 words, 2 पद हैं। आत is पंचमी विभक्ति of आ। It means we can take or we can consider all 18 akaras. आत पंचमी। So after a akara, आकार के बाद अगर अज्वर्ण है तो ये अज्वर्ण कहां से आता है? अनुवृत्ति comes from इको यणचि। अचि, the word achi comes from इको यणचि as अनुवृत्ति. So achi means if अज्वर्ण अज letter is following, अज्वर्ण पर है, परत्र है तो मतलब बाद में है तो आकार के बाद अगर अज्वर्ण है तो गुणादेश होगा। कहाँ? अधिकार है एक पूर्व परयोः, एक गुण वर्ण पूर्व और परत्र मतलब पहले वाला वर्ण और बाद में जो वर्ण है, इन दोनों वर्णों के स्थान में एक ही गुण वर्ण आदेश के तौर पर आएगा। इसके उदाहरण हम देखे हैं। उपा इंद्र, उपेंद्र। उपा आकार है और इंद्र इकार है, तो इसके स्थान पर उपेंद्र, आ और ई इन दोनों के स्थान पर एकार आदेश के तौर पर आया है। हाँ, यहां देख सकते हैं। गण ईशः, आ और ई आकार पूर्वत्र है और बाद में ईकार है, इसीलिए ईकार अज्वर्ण है, इसीलिए आ और ई के स्थान पर एकार आदेश के तौर पर आता है। गणेशः। देव इंद्रः, यहां भी वैसे ही देवेंद्र। यहां ये भी हम पहले पाठ में जाने थे। आ आकार का स्थान कंठ स्थान है और इकार का स्थान तालु स्थान है, इसीलिए आकार और इकार के स्थान पर एकार जो आदेश आता है वो कंठ तालु स्थान होता है उसका, इसीलिए एकार ही आदेश के तौर पर आता है। Why? Because akara is kanthasthaniyah and ikara is talusthaniyah. So kantha talusthaniyah ekara comes as replacement. And then akara and ukara. Kupa udakam. Kupa is akara, udakam is ukara, ach. So a is followed by ach, ukara. Here a and u both the letters will be replaced by another guna varana, that is okara. Why okara? Because akara is kanthasthaniyah
and ukara is osthasthaniya. That's why okara comes as replacement, because okara's sthanam is utpatti sthanam is कंठोष्ठम. नमस्ते. समाचार प्रॉफ. हाँ, यहां तक हम पिछले क्लास में देखे थे. अभी इससे आगे अज्वर्ण मतलब आ से लेकर औ तक, लेकिन हम दो ही उदाहरण देखे हैं. आ के बाद अगर ई है तो क्या होता है, आ के बाद ऊ है तो क्या होता है. टिल नाउ वी हैव सीन टू kinds of examples of guna sandhi, but the guna sandhi says whenever any vowel following akara, then the previous and the following letter, both the letters will be replaced by a guna varna or guna letter. But till now we have seen only ikara and ukara. Now we will try to understand what happens for other ajvarnas. So before understanding the other scenarios or other examples, we should understand some more sutras. Upadeshe ajanunasika it. This is a itsamya vidhayakam sutram. What are the itsamya vidhayaka sutras we have already learned? Anyone? Halantyam. Very good. Halantyam, which says the last hal letter of any upadesha will get itsamya. But this sutra, upadeshe ajanunasika, this sutra tells about the ajvarana which will get itsamya. We'll understand what is the sutra's meaning. Padachhedaha upadeshe ach anunasikaha it. Upadeshe, we know what is upadesha. Dhatu sutra ganonadi vakya linga anushasanam agama pratyadesha upadesha prakirtita. All these things called upadesha. So in this upadesha, any anunasika ach is there, then that anunasika ach will be considered as itsamya letter or it varna. There is no rule that the ach should be at the end. Anywhere the ach, maybe the ach in the upadesha, the ach can be anywhere, but if the ajvarana is a anunasika letter, then it will be a itsamya letter. Sutrartha upadeshe anunasikaha ach itsamyakah bhavati. अस्य नियमः नास्ति. अयम् अज्वर्णः अन्ते एव भवेत् इति नियमः नास्ति. अनन्त्यार्थमिदं सूत्रम्. अन्ते यः वर्णः नास्ति तस्य इत्संज्ञा चेत् अनेन सूत्रेण अज्वर्णस्य कृते. Then where the ajvarna is itsamya anunasika letter, in Maheshwara Sutras there is a sutra called Lan. Ayun, Rilik, Eong, Ayauch, Ayavarat, Lan. So in this Lan Sutra, the akara which is following lakara, means lakara, akara and nakara, there are three letters. Other than this Lan Sutra, all the akaras are used for ucharanartha. Lan Sutre tu itsamyakaha. We have studied these sentences in Samya Prakaranam. Akaradishu akaraha ucharanarthaha. The a which is used in every sutra starting from Hayavarat with every letter consonant, the akara is used for ucharanarthaha, means to reduce the kleshaha, ucharana klesha nivrityarthaha. But
लं सूत्रे तु इत्संज्ञकः, but the is not for the easy pronoun, not for the easy pronunciation, but the akara has its samya. This akara has its samya because of this sutra. Because the akara is anunasika akara. That's why by this sutra, upadeshe anunasika it, with this sutra, the akara gets its samya. Wherever we get its samya for any letter, what will be the next step? तस्य लोपः. यत्र कुत्रापि एकस्य वर्णस्य इत्संज्ञा प्राप्नोति चेत् तदनन्तरमेव किम् आगच्छति? तस्य लोपः इति सूत्रेण तस्य लोपः भवति. अतः अकारस्यापि लोपः भवति. अधुना पश्यामः. तत्र र इति एकः प्रत्याहारः अस्ति. प्रत्याहारः कथं भवति? हाउ वी मेक प्रत्याहारास्? We take we consider any letter of the sutra as Adi Varnaha or first letter, and after that letter we consider any Itsamya letter, and we if we take both these letters together, then that will make a Pratyahara. This we all know. Like the same way, if we take Ra of Hayavarat Sutra, Ra means R, and we take Akara of Lan Sutra, Akara also it's Samya. So Akara of Lan Sutra, and we combine both these letters, then what we get? Ir. Ir plus A. The final form is Ra. So Ra is also a Pratyahara which denotes two letters. What are the two letters? Ir and L. Rephaha and Lakaraha. Because Hayavarat, we are taking the Ra as first letter. So Ir, after that Takara is Samyakaha, and Lan Sutra, here Lakara can be considered. A is the Itsamya Varana, so A we cannot consider. So finally Ra and La, Rephaha and Lakaraha, these two letters will be denoted by Ra Pratyaharaha. Fine? Any doubt? Kaushal ji? नहीं. किसी भी प्रत्याहार बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें इत्संज्ञा वर्ण चाहिए. तो उपदेशे अजोनासिक इति इसी सूत्र से लण सूत्र में जो आकार है वो आकार इत्संज्ञा वर्ण है, ये पता चल गया है, क्योंकि ये आकार अनुनासिक वर्ण है. और उसके बाद हयवर सूत्र में जो रकार है, मतलब रेप है, वो रेप से लेकर लन सूत्र का जो आकार के साथ हम प्रत्याहार बनाएंगे तो र और आ दोनों को मिला के रा बोल के स्वरूप बनता है, और इसको रा प्रत्याहार बोलते हैं. जो रा प्रत्याहार के मतलब क्या होता है? रा प्रत्याहार से कितने वर्ण ग्रहण किए जा सकते हैं? मतलब दो वर्ण. वो एक रेफ है और लकार है, ये दो वर्ण. अभी और एक सूत्र जानेंगे. उरंड्र परः, उहु अण् रपरः, ये तीन पद है. उहु अण् रपरः. There are three words in this sutra. What is uhu? Uhu is षष्ठी vibhakti, of which shabda? R shabda. Like how we get षष्ठी vibhakti of dhatru shabda, dhatuhu. The same way, for R shabda, the षष्ठी vibhakti will be uhu. Uhu means rikarasya sthane, because wherever the षष्ठी vibhakti is there, we consider as sthana षष्ठी.
or this is the varna or this is the letter which will be replaced. So rikarasya sthane. Not only rikarasya sthane, because we know rilu varanayor mithasavaranyam vachyam. We know that in Vyakarana or in Samskrita Bhasha, Samskrita language, in this language, we consider R and L as savarnas. So wherever we take rikara, we should take both the letters. So rikarasya likarasya sthane. This is the meaning. Uhu means rikarasya likarasya cha sthane. Raparaha, how we took taparaha, the same way here raparaha. Ra means here pratyahara. Ra, the repa, the ra denotes pratyahara. What is the pratyahara? Ra pratyahara. So we should take or we should consider two letters here, repaha and lakaraha. Okay? Ra paraha yasmat saha raparaha. Ra, the ra pratyahara letter is followed or is following which letter, that letter will be called as rapara letter. How in tapara we saw taha paraha yasmat saha taparaha. That's why like that raha paraha yasmat saha raparaha. Here ra means pratyaharaha. So r and al, these two letters we should take. So what is a rapara varna? Means ar, al, ar, al, ir, il, ir, il, ur, ul. All these letters are called, all these un letters. So what is the sutra? What does the sutra mean? The un letter. Here un is pratyahara using the first nakara, because we know an purvena in parena. Whenever in Vyakarana Shastra we want to do an pratyahara, then we should consider the first itsamya letter or nakara. First itsamya nakara. Whenever we do pratyahara in pratyahara, then we should consider the second nakara. This is the basic rule. Only in anudit savarnasya cha pratyayaha, only in this sutra we should consider an pratyahara with the second nakara. Okay? So here an letters a, e, o, all these three letters, whenever these un letters are coming as replacement in the place of rikara or likara, then these un letters will be raparaha or will become raparaha. Raparaha means repaparaha or lakaraparaha. If the un letters comes in the place of rikara, then the letters will be repaparaha. Ir, ur, like this. If these un letters comes in the place of likara, then these un letters will be raparaha here, lakara paraha, al, il, ul, like this. क्या अर्थ हुआ? जो अण वर्ण, जो अण वर्ण होते हैं अ, ई, उ, ये तीन वर्ण अगर ऋकार के स्थान पर आते हैं आदेश के तौर पर, तो ये आ, ई, उ, ये तीन वर्ण रपर बन जाते हैं. मतलब रा मतलब प्रत्याहार, और रा प्रत्याहार में रेफा और लकारा, ये दोनों वर्णों का ग्रहण किए जाते हैं. तो ऋकार के स्थान पर अगर कभी कोई अण वर्ण आदेश के तौर पर आता है तो वो रेफ पर हो जाता है, मतलब अर, इर, उर हो जाता है. और किसी भी लक्ष्य में लिकार के स्थान पर अगर ये अण वर्ण आते हैं तो वो लपर हो जाता है, मतलब अल, इल, उल ऐसे बन जाते हैं. ये सूत्र का सारांश है. समझ में आ गया? हेलो जी आचार्य जी. अभी आगे के उदाहरण देखते हैं. कृष्ण रुद्धि ही, हियर कृष्णस्य रुद्धि ही, रुद्धि ही नाम वृद्धि ही, वर्धनम. कृष्णस्य रुद्धि ही, कृष्ण का
मतलब बड़ा होना या ऐसा अर्थ है। कृष्ण रिद्धि, ये कृष्ण द फर्स्ट लेटर इज अकारः and this akara is followed by a ajvarana rikarah. So here the a and r will be replaced by a guna varana. What are the guna letters? A, A, O. So here A and O, both the letters are already used or taken. In which case, whenever A and E is there, in these place, A is already taken. And whenever A and U is there, in that case, O is also already taken. So now only one Gunavarna is left, that is Akara. And Akara is Kanthasthaniya. Here in Krishna and Riddhi, in this case, A is Kanthasthaniya and R is Murdhasthaniya. So, as per the Adesha rule, we should do the similar Adesha. Antaratamaha Adesha Kartavya. So here, Kantha, the sthanis are belonging to Kantha and Murdha, but the Adesha Varna, Guna Varna which is left out, that is Kanthasthaniya. There is no match in between these two. अभी समझाता हूं। अभी जो गुणवर्ण है अदेंग गुण, ये सूत्र से पता चलता है क्या गुणवर्ण है। आ, ए और ओ, ये तीन वर्ण गुणवर्ण कहे जाते हैं। तो इन तीनों में से एकार एक स्थान पर चरितार्थ हो गया। कहा? जहां आकार और इकार होता है उन दोनों के स्थान पर एकार चरितार्थ हो गया और कोई वर्ण नहीं जा सकता है वहां। दूसरा, आकार और उकार जहां रहता है उसी उन दोनों के स्थान पर ओकार चरितार्थ हो गया। क्यों? आकार कंठस्थानीय है, उकार ओष्ठ स्थानीय है, इसीलिए कंठोष्ठ जो ओकार है वो वहां आदेश के तौर पर चला जाता है। अभी आकार और ऋकार के स्थान पे कंठ और मूर्ध, ये स्थानीय जो है कंठ और मूर्ध स्थानीय है, और आकार जो बचा हुआ है आदेश में, आदेश गुण वर्णों में, वो कंठ स्थानीय है। इन दोनों में कोई मेल नहीं खाते हैं क्योंकि स्थानीय बन गया कंठ मूर्ध और आदेश बन गया कंठ। अभी क्या करें? व्हाट टू डू नाउ? तो यहां एक न्याय का सहारा लेते हैं। क्या न्याय है वो? नष्टाश्व दग्ध रथ न्याय। नष्टाश्व दग्ध रथ न्याय। किसी मतलब जगह पर दो राजा दो अपने अपने रथ लेकर जाते हैं। बीच रास्ते में एक राजा का क्या होता है? घोड़ा मर जाता है। दूसरे राजा का क्या होता है? रथ टूट जाता है। दोनों को वहां पहुंचना है। दोनों सोचकर क्या करते हैं? ठीक है, एक काम करते हैं, मेरा घोड़ा ठीक है, तुम्हारा रथ ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तुम्हारे रथ में मेरे घोड़े को लगाकर दोनों एक ही रथ में चले जाते हैं। जा सकते हैं कि नहीं ऐसे? हेलो, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, एग्जाम्पल्स। हाँ, नहीं, मैं जो समझाया, नष्टाश्व दग्ध रथ न्याय समझ रहे हैं कि नहीं? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, तभी इंटरेक्शन थोड़ा अच्छा रहेगा। What does it mean, the Nastashva Dagdha Ratha Nyaya? If two kings are going by two chariots, and in the middle of the way
one king's chariot is not moving, and another king's horses are dead, then what they can do? They can add the chariot, one's chariot with another king's horses. Like that, they can cross the path. The same way here also, the स्थानी, जो स्थानी है कृष्णा रुद्धि, ये कौन से स्थान के हैं? कंठ मूर्ध। और जो आदेश है वो कंठ स्थान है। मतलब यहाँ क्या पता चलता है? स्थानी जो कंठ मूर्ध स्थान में आने के लिए कंठ मूर्ध आदेश कोई नहीं है, और ये जो आकार कंठ स्थानी जो आदेश है, इसको जाके बैठने के लिए कोई कंठ स्थान वाला स्थान ही नहीं है, खाली कंठ स्थान वाला। तो अभी क्या, दिस इज द सिमिलैरिटी इन बिटवीन दीज टू। These two replaceable letters, they don't find any replacement letter. And the akara, which is a gunavarna, this is a replacement actually for gunasandhi, but this doesn't find a suitable replaceable letter. So this is the similarity in between these two. So in this case, akara will replace akara and rikara. In the same way, akara and likara also. For example, nowadays, how the second marriage are happening. So, some partner is there, he doesn't have a lady partner, and another lady who doesn't have a male partner. So, both those are getting connected. Like वे ये क्यों बता रहा हूं, मतलब समझ में आने के लिए। मतलब यहाँ क्या है, यहाँ क्या सिमिलैरिटी है, मतलब अंतरतम जो आप बोले थे, जब भी हम आदेश करेंगे तो अंतरतम आदेश करना चाहिए, जो बहुत सदृश होगा वही आदेश करना चाहिए। तो यहाँ तो सादृश्य ही नहीं है, यहाँ सादृश्य दोनों में ही नहीं है, यही सादृश्य है। Here, the sthani couldn't find any suitable adesha letter, and adesha letter couldn't find any suitable sthani for it. So this is the similarity of these two things. So यहाँ नष्टाश्व दग्ध रथ न्यायः, इसी न्याय के हिसाब से यहाँ आकार को ही आकार और ऋकार के स्थान पे आदेश के तौर पर लिया जाता है, वैसे ही आकार और लिकार के स्थान पे भी आकार को ही आदेश के तौर पर लिया जाता है। इन दिस केस द गुणवर्ण आ only akara which is left, that akara will be replacing the akara and rikara as well as akara and likara also. Fine. अभी ये आकार जो है ये अणवर्ण है, और ये अणवर्ण आकार और ऋकार दोनों के स्थान पर आदेश के तौर पर आता है, ये पता चल गया। तो ऋकार के स्थान पर भी आकार आता है, अणवर्ण आता है, इसीलिए उरंड्र परहा, इसी सूत्र से ऋकार के स्थान पर जब आकार आता है वो रपर बन जाता है। जैसे हम कोई नीली लाइट के अंदर घुसते हैं तो हमारा पूरा शरीर नीली बन जाता है, वैसे ऋकार के स्थान पर अगर अणवर्ण आके बैठता है तो वो अर बन जाता है, और लिकार के स्थान पर अगर आके बैठता है तो वो अल बन जाता है। भले ही वो आकार के स्थान पर भी आता है, लेकिन ऋकार के स्थान पे भी आता है और लिकार के स्थान पे भी आता है बोल के यहाँ अर और अल बन जाता है, वो आकार ही। समझ में आ गया? यहाँ नष्टाश्व दग्ध रथ न्याय, ये न्याय के हिसाब से यहाँ आदेश, यहाँ आकार आदेश के तौर पर आता है। अभी बाकी के उदाहरण देखते हैं। कृष्ण रुद्धि ही, यहाँ पहले जो आकार है और बाद में ऋकार है, इन दोनों के स्थान पर आ जो बचा हुआ गुणवर्ण वही आएगा, और वो उरंड्र परहा सूत्र के हिसाब से रपर बन के आएगा, अर आएगा।
तो कृष्ण अर्थी, कृष्णर्थी। वैसे तव लिकार, तव यहाँ आकार है और लिकार यहाँ लिकार है, तो ये आ और ल इन दोनों के स्थान पर आकार ही आएगा। और वो आ क्योंकि यहाँ लिकार के स्थान पर आता है, वो उरंड्रपर सूत्र के हिसाब से रपर मतलब यानी यहाँ लपर बन के आएगा। तव अलकारः, तवलकारः। समझ में आ गया? कोई संदेह? अब थोड़ा अभ्यास से आप आएगा, ये थोड़ा क्लिष्ट लग रहा है। हाँ जी जी जी। नहीं, यहाँ तक हम जो पढ़े थे अंतरतम आदेश ही हमें करना चाहिए। मतलब जो स्थानीय जो वर्ण होता है, जो वो जिस स्थान से उच्चारित होता है उसी स्थान का वर्ण ही आदेश में आएगा बोल के हम पढ़े थे। लेकिन यहाँ वो मेल नहीं खाता है। ये स्थानीय जो है वो कंठ और मूर्ध स्थानीय है, लेकिन आदेश कंठ और मूर्ध वाला कोई गुणवर्ण ही नहीं है। तीन ही गुणवर्ण है उसमें। एकार और ओकार वहां उनके उनके जगह पर चरितार्थ हो गए, खाली आ ही बचा है। तो आदेश वही नहीं है। ये आकार को जाके बैठने के लिए खाली कंठ स्थान वाला स्थानी भी नहीं मिल रहा है। तो ये कंठ मूर्ध स्थानी के लिए आदेश कोई नहीं मिल रहा है, और खाली कंठ स्थान वाला जो आदेश है आकार है उसका स्थानी कोई नहीं मिल रहा है। तो इसका आदेश कोई नहीं है, इसका स्थानी कोई नहीं है। यही परस्पर में जो साम्य है, आपस में जो समानता जो है वो इसी तरह का समानता है। इसी तरह का समानता को लेकर हम यहाँ आकार को ही कंठ और मूर्ध स्थान में बिठाते हैं आदेश के तौर पर। वैसे आकार को ही कंठ और दंत स्थान जो है लिकार, उन दोनों में के स्थान पे भी यही आकार ही आदेश के तौर पर आता है। समझ में आ गया? कौशल जी? हाँ जी जी आगे। तो अभी और एक संदेह हो सकता है कि गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुण सूत्र and anurti is achi. So what does the sutra mean? Whenever any vowel following akara, then the akara and the following vowel both will be replaced by a guna varna. But till now we have seen only 4 types of examples. One is akara and ikara, akara and ukara, akara and rikara, akara and likara. Only 4 types of vowels we have seen in these examples. But vowels means akara is also there. We didn't see the example of akara following akara, how the guna varna will happen. And a, o, I, au, all these 4 letters also. So for that we should understand Vriddhi Sandhi first. Now we will move to Vriddhi Sandhi. Before going to Vriddhi Sandhi, there is some Lopa Sandhi is there. Yakara and Vakara Lopa. What is that? We will understand first. Lopa Shakalyasya. The sutra is Lopa Shakalyasya. Lopaha Shakalyasya. Shakalya is a Maharshi who has done Vyakaranam before Panini Maharshi. So Panini is remembering Shakalya Maharshi also. So in Shakalya Maharshi's opinion, what happens? That Panini is saying here. Lopaha Shakalyasya. There are 2 words. Padachhedaha. Lopaha Shakalyasya. अनुवृत्ति के तौर पर क्या आते हैं? अपूर्वस्य और अशी, ये दोनों वर्ण अनुवृत्ति के तौर पर आते हैं। कौन से सूत्र से?
भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, ऐसा एक सूत्र है। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, ये यो अशी जो है, ये अशी पद ऐसे ही अनुवृत्ति में आ जाता है। और भो भगो अघो अपूर्वस्य, इस पद से जो अपूर्वस्य जो भाग है वो अनुवृत्ति के तौर पर आ जाता है। तो अपूर्वस्य और अशी, these are the two words which come as anuvritti. And another word vyoho, vyoho is षष्ठी vibhakti of vyau, it means vakara yakarayoho, वकार और यकार के स्थान पर, ये षष्ठी द्विवचन है इसीलिए वकार और यकार के स्थान पर ऐसा अर्थ आएगा। ये कौन से सूत्र से आता है अनुवृत्ति? योर लघु प्रयत्नतरः शाकटायनस्य, ये शाकटायन भी और एक महर्षि हैं पाणिनि से पूर्व, ये शाकटायन व्याकरण बोल के लिखे थे। शाकटायनस्य, योर लघु प्रयत्नतरः शाकटायनस्य, इस सूत्र से व्योह, ये एक षष्ठी विभक्ति पद, ये भी अनुवृत्ति के तौर पर आता है। अभी क्या कैसे सूत्र के पद कैसे बनते हैं? लोपः शाकल्यस्य अपूर्वस्य अशी व्योहो, ये 5 पद बन गए हैं। और अधिकार जो है ये पदस्य बोल के एक अधिकार है। तो अभी कैसा अर्थ बनेगा ये हम देखेंगे। अपूर्वस्य जो एक वचन में है वो द्विवचन में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि व्योह द्विवचन में है, वकार यकार योह, वकार और यकार का, ऐसा अर्थ में। तो इसके साथ जुड़ने के लिए यह अपूर्वस्य जो है अपूर्वयोह द्विवचन में बदल जाएगा। तो इससे क्या अर्थ मिलता है? अपूर्वयोहो व्योहो। अपूर्व मतलब क्या है? अपूर्व, आकार जिस वर्ण से पहले है वो वर्ण अपूर्व बोला जाता है। ये अपूर्व कौन कौन है? वकार और यकार। अपूर्वयोहो व्योहो, ये अपूर्व क्या कौन है? वकार और यकार। मतलब वकार से पहले आ होना चाहिए और यकार से पहले भी आ होना चाहिए, तब ये आ और वा क्या कहा जाएंगे? अपूर्व कहा जाएंगे। अपूर्वः यकारः, अपूर्वः वकारः, ये हो गया। अभी ये जो पदस्य जो है, ये पदस्य भी द्विवचन में बदल जाएगा, पदयोः, और ये हो गया विशेष्य। पदस्य जो हो गया विशेष्य, और अपूर्वयोः व्योह जो हो गया विशेषण, व्योह जो हो गया विशेषण। कौन सी विभक्ति में है दोनों? षष्ठी विभक्ति में है। पदयोः व्योह षष्ठी विभक्ति में है। तो अभी एक विषय हम पहले एक विषय समझे थे, जहां विशेष्य और विशेषणम सप्तमी विभक्ति में होता है और विशेषणम वर्णवाचक होता है, तभी कैसे अर्थ का लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये विशेषण को विशेष्य के आदिम वर्ण बना जाएगा, मतलब तदादि विधि ही। पहले पढ़े थे, कहां पढ़े थे? वांतो यी प्रत्यये, यी बोल के विशेषण जो है वो सप्तमी विभक्ति में है, और प्रत्यये बोल के विशेषण जो विशेष्य जो है वो भी सप्तमी विभक्ति में है, और विशेषण जो यी है वो वर्णवाचक है, मतलब यकार है। तो तब क्या यकारे प्रत्यये ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए। कैसा अर्थ लेना चाहिए? यकारादि प्रत्यये परे, मतलब प्रत्यय का आदि वर्ण हो गया, आदि अवयव हो गया यकार, तो यकारादि प्रत्यये परे, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। पहले पढ़े थे हम। अभी ठीक उसका ऑपोजिट, विपरीत अर्थ है। मतलब अगर विशेष्य और विशेषण दोनों ही पंचमी या षष्ठी विभक्ति में अगर होते हैं तो हमें कैसा अर्थ लेना है? ये विशेषण जो है विशेष्य का अंतिम अवयव बन जाएगा।
तदंत विधि ही कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तदंत विधि ही। तो अंतिम अवयव बन जाएगा। तो प्रकृति में देखिए, पदयोः विशेष्यम है और व्योः ये विशेषण है। तो ये व्योः क्या बनेगा? अंतिम अवयव बन जाएगा। तो पदांतयोः व्योः मतलब पदांतयोः वकार यकारयोः, ये अर्थ आ जाएगा। हाँ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? हेलो, पदांतयोः। हाँ बताइए। कुछ कठिन कठिन लग रहा, बार बार पढ़ेंगे आचार्य, हो हाँ जाता है। मतलब जब भी विशेष्य और विशेषण हम प्रयोग करते हैं संस्कृत भाषा में, तो नीलः घटः मतलब नीली घड़ा, ऐसा अर्थ आएगा। वैसे ये दोनों एक ही विभक्ति में होंगे, एक ही वचन में होंगे और एक ही लिंग में होंगे। चतुरः बालकः अस्ति, चतुरम बालकम पश्यामि, ऐसे। जी। तो वैसे ही पदस्य और व्योह, पदयोः व्योह, ये पदयोः भी षष्ठी में है और द्विवचन में है और पुल्लिंग में है या नपुंसकलिंग में है, पर नपुंसकलिंग में है। यहाँ व्योह भी षष्ठी विभक्ति में है और द्विवचन में है और नपुंसकलिंग में ही है। जी। तो ऐसा अभी क्या संस्कृत भाषा के मर्यादा से क्या कैसा अर्थ आएगा? जो पद है वो वकार यकार है, मतलब पद और वकार ये दोनों एक ही है, ऐसा अर्थ आएगा। क्योंकि नीलः घटः मतलब क्या है? जो नील है वो गढ़ा है, जो घड़ा है वो नील है। नील। चतुरः बालकः मतलब क्या अर्थ होता है? जो चतुर है वो बालक है, जो बालक है वो चतुर है। वैसे ही यहां भी अगर अर्थ लेंगे तो जो पद है वो यकार है, जो पद है वो वकार है, ऐसा अर्थ आएगा। लेकिन ऐसा अर्थ व्याकरण में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहां षष्ठी विभक्ति में है दोनों विशेषण, विशेष्य और विशेषण। जब भी विशेष्य और विशेषण षष्ठी विभक्ति में होते हैं तो ये विशेष्य का अंतिम अवयव बन जाएगा ये विशेषण। तो पद अंत यकार, ऐसा अर्थ आएगा। पद अंत वकार, ऐसा अर्थ आएगा। तो षष्ठी विभक्ति को जोड़ दीजिए, पदांत यकारस्य, पदांत वकारस्य। द्विवचन में बोलेंगे तो पदांतयोः यकार वकारयोः, ऐसा अर्थ आएगा। समझ में आ गया अभी? कौशल जी? जी आ गया। हाँ, ऐसे ही अगर पंचमी विभक्ति में होने से भी ऐसे ही अर्थ आएगा। पदांतात यकारात, पदांतात वकारात, ये जब आएगा हम वहां फिर समझाएंगे। तो अगर विशेष्य और विशेषण पंचमी विभक्ति में रहते हैं तो विशेषण विशेष्य का अंतिम अवयव बन जाएगा। ऐसे ही अगर विशेष्य और विशेषण दोनों सप्तमी विभक्ति में रहते हैं और विशेषण वर्णवाचक होता है तो इसका विपरीत अर्थ आएगा, विशेषण जाके विशेष्य का आदि अवयव बन जाएगा। यह है सूत्रों के समझने का एक तरीका, खास करके व्याकरण शास्त्र में। उसको तदंत विधि बोलते हैं और इसको तदादि विधि बोलते हैं। So whenever in any sutra visheshya and visheshanam, visheshyam and తదంత విధి తదాది విధి అంటే which one is which? I'm repeating that. Whenever in any sutra the visheshyam and visheshanam both are in panchami vibhakti or षष्ठी vibhakti, then the visheshanam will be added to the visheshyam as a antyavayava or last part of the visheshyam. So this is called tadanta vidhi. And when the visheshyam and visheshanam both are in saptami vibhakti,
and Visheshanam is a letter, any Varnavachaka, then the Visheshanam here becomes the first part or the starting letter of the Visheshyam. This is Tadadi Vidhihi. So यहाँ पदयोहो ये विशेष्यम है, व्योहो ये विशेषण है, दोनों षष्ठी विभक्ति में है। अगर सामान्य भाषा में बोलेंगे तो जो पद है वो यकार है, जो पद है वो वकार है, जो दोनों पद हैं यकार वकार है, ऐसे ही अर्थ आएगा। मतलब अभेद, जो पद है वो वकार है, जो पद है वो यकार है, जो यकार है वो पद है, ऐसा अर्थ आएगा, अभेद अर्थ। वैसा अर्थ नहीं लेना है, क्योंकि यकार वाला पद कोई एक वर्ण का पद कहीं पे है क्या? नहीं। तो हमें व्याकरण में तदंत विधि बनाना है, क्योंकि ये दोनों षष्ठी विभक्ति में है। ऐसे बनाएंगे तो पदांत यकारः पदांत वकारः, ऐसा अर्थ आएगा। पदांतयोः व्योः मतलब पदांतयोः यकार वकारयोः, जो भी पद है उस पद के अंत में जो यकार है या वकार है उन दोनों को, और वो भी यकार वकार कैसा होना चाहिए? अपूर्व होना चाहिए। मतलब यकार से और वकार से पहले आकार होना चाहिए। ऐसा यकार और वकार को क्या होगा? लोप होगा। कब? अगर परत्र पर में ऐसा यकार और वकार के बाद में अश प्रत्याहार वर्ण है तो, ठीक है। लोपः, उसका लोप होगा। ये शाकल्यस्य पद का अर्थ क्या है? ये शाकल्य महर्षि के मत में, दिस इज अकॉर्डिंग टू द शाकल्य महर्षि और शाकल्य व्याकरणम, बट इन पाणिनीय व्याकरणम this won't happen. So it is an optional way, or this lopa occurs as a optional. So what is the sutra artha? Padantayoho यकार वकारयोः, यकार जो पद के अंत में जो यकार और वकार हैं, और ये यकार और वकार भी अपूर्व है। यकार से पहले आकार होना चाहिए और वकार से पहले भी आकार होना चाहिए। द यकारा एंड वकारा शुड बी प्रिसाइडिंग बाय आकारा, एंड बोथ द यकारा एंड वकारा should be the last letter of a word or padam. Then the yakara and vakara will be omitted optionally whenever these two letters are followed by any ash pratyahara letter. जब भी अश प्रत्याहार लेटर बाद में है, ये यकार और वकार के बाद, तो कौन सा यकार और कैसा यकार व वकार होना चाहिए? यकार और वकार से पहले आकार होना चाहिए, और ये यकार और वकार पद के अंतिम वर्ण होने चाहिए। तब ये यकार और वकार का विकल्प में लोप होगा। पदांतयोः अवर्ण पूर्वयोः यवयोः लोपः वा मतलब विकल्प, वा स्यात् आशी, अश्वर्ण अगर बाद में है तो। इसके उदाहरण हम देखेंगे। हरे इह, हे हरे ये संबोधन है, हरे ये पद है, और बाद में इह मतलब यहाँ। यहाँ कौन सा संधि आने की संभावना है? कौन सी संधि का संभावना है? अयादि संधि। हाँ, अयादि संधि। एचो यवा यावः। तो हरे एकार एज वर्ण है, और एज वर्ण के बाद अज्वर्ण है इकार, इसीलिए एकार के स्थान पर ऐ आदेश आ गया। सो हरय इह, हियर हरे इज पदम, so in the place of ekara I, the phrase I has come as a replacement. So now harai also become padam. In this padam yakara is the last letter, and this yakara is presiding by akara.
and this yakara is followed by ikara, which is ash pratyahara letter. Then the yakara will be omitted optionally. विकल्प की तरह से लोप होगा ये यकार का. हरय इहा, यकार का अगर लोप करेंगे तो हर इहा बनेगा. अगर यकार का लोप नहीं करेंगे तो कैसा बनेगा? हरय इहा जोड़ने से हर इहा. समझ में आ गया? वैसे विष्णु इहा, विष्णु हे विष्णु ये संबोधन है. विष्णु इहा, यहां भी ओकार है. ओकार एज वर्ण है, एज प्रत्याहार वर्ण है, और ओकार के बाद अज प्रत्याहार वर्ण इकार है. तो यहां भी अयवा एचो यवा यावहा, इसी सूत्र से ओकार के स्थान पर अव आदेश आएगा. तो विष्णु इहा, यहां कुछ टाइपो एरर है, विष्णु इहा. तो यहां भी विष्णु ये एक पद है. पद के अंतिम वर्ण, पद का अंतिम वर्ण वकार है, और ये वकार का पहला वर्ण जो है, वकार के पहले क्या कौन सा वर्ण है? वो आकार है, अपूर्व है यही वकार. और ये वकार के बाद अश प्रत्याहार वर्ण इकार है. इसीलिए लोप शाकल्यस्य सूत्र के हिसाब से यहाँ वकार विकल्प के, वकार का लोप विकल्प की तरफ से होगा. तो अगर लोप करेंगे तो विष्णु इहा ऐसे ही रहेगा. लोप नहीं करेंगे तो विष्णविहा. तो शाकल्य महर्षि के मत में लोप होगा, पाणिनि महर्षि के मत में लोप नहीं होगा. दोनों ही साधु हैं. हम ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, वैसे भी प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है, इसके आगे का थोड़ा प्रक्रिया है, और एक प्रक्रिया समझकर हम उसके बाद वृद्धि संधि पढ़ेंगे कल. कुछ संदेह हैं किसी के? तो ठीक है. रमाकांत जी, आप ये थोड़ा बार बार अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि संस्कृत भाषा में जब भी विशेष और विशेषण प्रयोग करेंगे तो अभेदार्थी आएगा. मतलब जो नील है वो घट है, जो घट है वो नील है. ये दोनों में अभेद ही हमें पता चलेगा. लेकिन यहाँ वो विभक्ति अगर पंचमी या षष्ठी विभक्ति में है तो ये, क्योंकि ये पूरा हम जो डिस्कशन करते हैं, विचार करते हैं, वो वर्णों के विषय में. तो ये विशेषण जो वर्ण होता है, ये विशेष्य जो एक समुदाय होता है, उस समुदाय का अंतिम वर्ण बन जाएगा, अंतिम अवयव बन जाएगा अगर पंचमी और षष्ठी में है तो. ये दोनों. अगर सप्तमी विभक्ति में है तो ये विशेषण, ये वर्ण समुदाय का आदि वर्ण बन जाएगा, आदि अवयव बन जाएगा. तो इसको ही हम तदादि विधि और तदंत विधि बोलेंगे. ये व्याकरण का मर्यादा है. तो अभी पदस्य वकारस्य ऐसा अगर है तो पदांत वकारस्य ऐसा अर्थ आएगा. अगर सप्तमी विभक्ति हम पहले देखे थे, ई मतलब यकार का सप्तमी विभक्ति ई, और प्रत्यय ये भी सप्तमी में है. तो यहाँ कैसा अर्थ आएगा? यकार रूप प्रत्यय ऐसा अर्थ नहीं आएगा, यकारादि प्रत्यय ऐसा अर्थ आएगा, क्योंकि दोनों सप्तमी विभक्ति में है. तो ये आज का क्लास है, हम इसके आगे कल पढ़ेंगे. जी अच्छा.